सो लास्ट क्लास में हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया है. वी हैव स्टॉप्ड इन द टॉपिक ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन्स. Equations of straight lines, right? So last class में हम ये देखे हैं equations का मतलब क्या है. What is the meaning of equation? An equation is an algebraic condition which each and every point on a straight line satisfies. And a straight line is a curve whose direction does not change, right? इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स यूज करके आप स्लोप निकाल दीजिए, सेम स्लोप आना चाहिए. दैट्स ए फिजिकल कंडीशन which every 2 points on straight line satisfies. सही है? ओके. सो ये प्रॉपर्टी का यूज करके हम कल एक सैंपल इक्वेशन भी निकाले हैं. एंड वी हैव सीन दैट द इक्वेशन लुक्स लाइक ए लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स. ओके. सो अब हम फिर ठीक है तरीके से स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक. सो फर्स्ट, इक्वेशंस ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस अलग से देखेंगे. इक्वेशंस ऑफ vertical lines and equations of oblique lines. ठीक है. there are three different types of lines. अगर lines divide करना है तो मैं तीन तरीके से divide कर सकता हूं. For example, if you take horizontal lines, all horizontal lines are parallel to what? All horizontal lines are parallel to which axis? X. X axis. All vertical lines are parallel to y axis, right? Oblique lines are neither parallel to x axis nor parallel to y axis. सही है? So if you take a horizontal line, is there any property that each and every point on this line satisfies? मान लीजिए x axis है या y axis है, ये मेरा line है, इसके ऊपर अलग अलग points, there are infinite number of points. Is there a physical condition which each and every point satisfies? So simply English में अगर बोलना है तो इस लाइन पे हर पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो सेम होता है क्या नहीं? Can it be a valid condition which is satisfied by each point on this line, right? So इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट लिया तो x, y. If P is a general point on this straight line, so इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या होता है? What is the distance from y axis, x axis? It is nothing but the y coordinate. So इस लाइन का इक्वेशन में y coordinate is equal to constant लिख सकता हूं? Yes, sir. So ये constant क्या है? This constant is nothing but this distance. अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो ये कांस्टेंट बढ़ेगा, डिस्टेंस कम हो गया तो कांस्टेंट कम होगा, लाइन नीचे आ गया तो कांस्टेंट नेगेटिव हो जाएगा, लाइन और नीचे आ गया तो ये वाला नंबर और नेगेटिव हो जाएगा. राइट? क्लियर है? सो इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस will look like what? y is equal to some constant a. क्लियर है? बेसिकली y इक्वल टू कांस्टेंट a का मतलब एक्स कोएफिशिएंट जो है वो जीरो हो गया है इफेक्टिवली. राइट? सही कि नहीं? If you think of a linear equation in two variables, ax plus by plus c equal to 0, how will this become this?
इसको ये ऐसा कैसे बनेगा? अगर a 0 है तो, समझ में आ रही? x कोएफिशिएंट अगर 0 है तो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट जैसा बनेगा. The line is parallel to x-axis. Okay. Similarly, equation of lines parallel to y-axis will look like, बोल सकते हैं? Will look like what? X X equals to equals to X is equal to constant. Okay. Clear? And अगर x and y दोनों है लाइन की इक्वेशन में, इसका मतलब वो neither parallel nor horizontal, they are oblique lines. Okay. So equations of oblique lines look like what? Ax plus by plus c equal to 0, where a and b not equal to 0. Okay. अगर a and b दोनों not equal to 0 है तो you have oblique lines. Clear? Easy? नोट करके बोल दीजिए. नोट कर लिया? noted, sir. Sir, हाँ बोलिए बेटा. noted. कर लिया? नोट कर लिया? हाँ सर. ओके. बाकी लोग? Yes, sir. Not. Yes, sir, noted. Next. This is a sample question. 4 equations दिया हूं. 4 lines. What is the area of the rectangle formed by these 4 lines? Okay. So आप ध्यान से देख लीजिए. x equal to 2 is a line parallel to which axis? ये x is equal to constant जैसे दिख रहा है ना. देखिए x equal to constant जो है parallel to y axis, y is equal to constant are parallel to x axis. समझ में आ रहे? So x is equal to 2 parallel to y axis at how much distance from y axis? 2 units. So this line is x is equal to 2. Okay. X equal to -3 is also parallel to y axis, but at how much distance? Basically -3 units. इसका मतलब left side. Okay. So ये वाला line जो है वो x is equal to -3. Okay. Next, y is equal to 5. Y is equal to constant is parallel to x axis, right? So ये कितना डिस्टेंस पे होगा? 5 यूनिट्स डिस्टेंस पे होगा. ओके. ऊपर 5 यूनिट्स ऊपर. एंड y is equal to -4 is a line which is 4 units below x axis, right? This is y is equal to -4. Okay. This is -4. अगर y axis में देखा तो this is -4. This is +5. Okay. So एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ. व्हाट इज द एरिया? बोल सकते हैं आंसर? व्हाट इज द लेंथ एंड व्हाट इज द ब्रेड्थ? सो यहां से यहां तक 3 यूनिट्स, यहां से यहां तक 2 यूनिट्स. सो टोटल ये वाला डायमेंशन कितना है? 5. 5 यूनिट्स. दिस इज 5, दिस इज 4. सो टोटल ये वाला डायमेंशन कितना है? 9. सो 9 into 5 is 45 square units. Easy है?
क्लियर? अब लास्ट पेज में we have seen what happens if a is equal to 0, what happens if b is equal to 0. सही है? एक लीनियर इक्वेशन में अगर x कोएफिशिएंट मिसिंग है तो पैरेलल टू x एक्सिस, y कोएफिशिएंट मिसिंग है तो पैरेलल टू y एक्सिस. ओके, so if c is equal to 0 in ax plus by plus c is equal to 0, अगर c 0 हो गया, this implies equation looks like what? Equation looks like ax plus by is equal to 0, right? Yes, sir. So this implies, can you see that 0 comma 0 always satisfies this equation? Yes, 0 comma 0 put किया तो satisfy हो रहा है 0 equal to 0. Yes, sir. Which implies the line passes through what? Origin. Origin. Okay. So एक straight line origin से जाना है तो condition क्या है? Constant term जो है वो 0 होना चाहिए. Clear है? Easy? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ओरल आंसर दे सकते हैं, मतलब आपको कुछ करने का भी जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में. एक इक्वेशन है, x कोएफिशिएंट इज k माइनस 3, y कोएफिशिएंट इज दिस, कांस्टेंट इज दिस. ओके, अगर ये लाइन x एक्सिस का पैरेलल होना है तो k कितना होना चाहिए? सर प्लस माइनस 2. प्लस माइनस 2. 2. वही गलत हो गया, सिली मिस्टेक्स वैसा ही होता है. देखिए पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब इक्वेशन शुड लुक लाइक व्हाट? इक्वेशन शुड लुक लाइक y is equals to a. y इज इक्वल टू कांस्टेंट है. इसका मतलब कौन सा वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए? x का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए या y का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए? X का. x का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए ना, राइट? सो पैरेलल टू x एक्सिस implies x कोएफिशिएंट इज 0, so k is equal to 3. Parallel to y axis implies y coefficient is equal to 0, so k is equal to plus or minus 2. Passing through origin means, so k is equal to 1 or 6. Okay, clear? Easy लग रहा है? Yes, sir. समझने के लिए कोशिश करिए, अगर समझ में नहीं आया तो बोलिए, नहीं तो आगे जाएंगे. आगे जा सकता हूं? Yes, sir. अब देखिए, so next is the process to find the equations of lines. Okay, general process. पहला जैसा हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं, एक स्ट्रेट लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए कितना पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए?
हाउ मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब ए लाइन। डिस्क्राइब ए लाइन का मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, इसका इक्वेशन आपको मुझे देना है। So two informations. So if I ask you to find the equation of this line, okay, your question will be ये कौन सा लाइन है ना। अगर उसका इक्वेशन बोलना है तो मान लीजिए मैं बोलता हूं उसके पास कितना पैसा है, ओके, तब आप क्या क्वेश्चन पूछिएगा, जो उसका का जो मतलब कौन है, राइट, उसको डिस्क्राइब तो करना पड़ेगा ना, किस आदमी के बारे में मैं पूछ रहा हूं। सो फिजिकली देखा तो उस आदमी का मैं एड्रेस दे सकता हूं या कुछ ना कुछ उसका डिस्क्रिप्शन दे सकता हूं। वैसा ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे दो इंफॉर्मेशन का जरूरत है। सो इट कैन बी गिवन इन एनी फॉर्म। सो वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म्स इज, लाइन का स्लोप मिलेगा आपको, समझ रहे, आपको लाइन का स्लोप मिल जाएगा, एंड you'll be given a point through which the line passes. If these two informations are given, we say that the point and slope are given. Okay, अगर मान लीजिए मैं इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स देता हूं, इससे भी काम हो जाएगा या नहीं। आई एम सेइंग दैट the line passes through these 2 points. So ये दोनों पॉइंट से जाने वाला कितना लाइंस होगा, एक ही लाइन होता है ना। Yes, sir. So लाइन तो फिक्स हो गया। If I say that the line passes through these 2 points, or if I say the line passes through x1 y1 having this slope का मतलब डायरेक्शन, right? So इस पॉइंट से उस डायरेक्शन में जाने वाला एक ही लाइन होता है ना। So here we say that the information is in point slope form. Here the information is in which form? 2 point form. Okay. इस फॉर्म में दिया तो भी हम इक्वेशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं, इस पॉइंट में इस फॉर्म में दिया तो भी हम इक्वेशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आ रही। सो फर्स्ट लेट अस ट्राई टू फाइंड द जनरल इक्वेशन। सो इस पॉइंट से जा रहे हैं और इस स्लोप से जा रहे हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इक्वेशन का मतलब क्या है, सम कंडीशन विच each and every point on this line satisfies. So let px comma y be any general point on this line. कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए। सो फिजिकली कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ए पी को यूज करके जो स्लोप मिलेगा वो m से बराबर होना चाहिए, राइट। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन ए पी, difference of the y coordinates divided by difference of x coordinates, right? Y minus y1 by x minus x1. This should be equal to what? m, right? ये condition जो है, this condition has to be satisfied by each and every point on the straight line, सही है क्या नहीं, right? So this is the equation of the line. अब चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। So y minus y1 is equal to m into x minus x1. So this is the equation of the straight line. याद रखना है, to be remembered. Clear? टू का मत 3 से जा रहे, स्लोप इज इक्वल टू 5, इक्वेशन क्या होगा। -1 का मत 3 से जा रहे, स्लोप इज -2। -2 का -5 से जा रहे, स्लोप इज 1/2। 1 का -5 से जा रहे, स्लोप इज -3/2। इक्वेशंस निकालना है, ओके। So you will not be expected to derive anything. So directly ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। So कैसे करेंगे, y minus
y1 कितना है 3 इज इक्वल टू स्लोप कितना है 5 इंटू एक्स माइनस व्हाट इज x1 2 हो गया इक्वेशन। बाकी इक्वेशंस लिख सकते हैं। Try to write the other equations. So, second वाला y minus 3 equals minus 2 x plus 1. Right. Next वाला सारा ओरल क्वेश्चंस है, आपको कुछ सोचने का जरूरत नहीं ना, जस्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन, नथिंग एल्स। सो y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स x माइनस ऑफ माइनस 1 जो है x प्लस 1 हो जाएगा। सो y माइनस ऑफ माइनस 5 y प्लस 5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस 2। y प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 3/2 टाइम्स x माइनस 1। ओके, यही आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. इजी है ना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट देखिए, एक स्लोप एक पॉइंट दिया तो दिस इज हाउ यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अगर दो पॉइंट्स दिया तो इफ टू पॉइंट्स आर गिवन, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, लेट p x comma y be any point on the straight line. So what is the condition that this p has to satisfy? Slope of AP should be same as slope of AB, बोल सकता हूं? Should this happen or not? Yes, sir. होना चाहिए ना। So slope of AP का फॉर्मूला क्या है? y minus y1 by x minus x1, right? सही क्या नहीं? y minus y1 by x minus x1 is equal to what is slope of AB? y2 minus y1 by x2 minus x1. Okay, so simply इस बार क्या होगा, y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 times x minus x1। ये दोनों देखने में सिमिलर लग रहे हैं, डिफरेंस क्या है दोनों इक्वेशंस में? m नहीं है सेकंड वाला। हाँ, इसमें m डायरेक्टली दे दिया। यहाँ 2 पॉइंट से अगर मान लीजिए लाइन जा रहे हैं, डेफिनेटली m तो निकाल सकता ना मैं, सो m मैं निकाल के सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ये y2 minus y1 by x2 minus x1 क्या है? दिस इज नथिंग बट m, राइट? सो कैन यू सी दिस, एक्चुअली दोनों सेम है, बोथ दिस इक्वेशंस आर सेम। इसमें m डायरेक्टली मिल गया, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं आप लोग? m is not directly given, you are calculating m and substituting this. Clear? Easy? देखिए यह x1 y1 x2 by 2 आर इंटरचेंजेबल। ऐसा जरूरत नहीं कि a को ही x1 y1 b को x2 by 2 मानना है। यहाँ y minus y2 x minus x2 भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा आपको। एक बार मैं करके दिखाता हूँ, देखिए इसको फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ, इसको सेकंड पॉइंट ले रहा हूँ। सो इक्वेशन क्या होगा,
y minus 1 is equal to, sorry, y minus y1 is equal to x minus 1, या बीच में क्या आएगा, स्लोप आएगा. स्लोप कितना है? What is the slope? So y2 minus y1 by so x2 minus 4 minus x1. 2 by minus 3 minus 1, सही है? Right? So y minus 2 is equal to कितना आ रहे? 2 by minus 4. Minus 1 by 2 आ रहे? x minus 1, right? मान लीजिए इसको सिंप्लीफाई किया आपने. 2y minus 4 is equal to minus x plus 1. सब कुछ एक तरफ लेके आया तो x plus 2y minus 5 is equal to 0, right? Okay है इक्वेशन? Is it okay? Yes, sir. अब मैं y1 x1 y1 के प्लेस में 1,2 के प्लेस में मैं b को x1 y1 मानता हूं. इसको अगर x1 y1 मान लिया तो सो इक्वेशन क्या होगा? y minus 4, राइट, इज इक्वल टू स्लोप कितना है? -1/2 टाइम्स x plus 3, राइट? ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन दोनों अलग लग रहे हैं. दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन का कितना इक्वेशंस हो सकते हैं? दो अलग अलग इक्वेशंस हो सकते हैं? No sir. नहीं है ना. हाँ. तो यहाँ दो अलग अलग क्यों हुआ? Why are these two equations not same? एक्चुअली देखा थे दोनों इक्वेशंस अलग लग रहे हैं, बट ये दोनों इक्वेशन सेम है. आप सिंप्लीफाई करने के बाद समझ में आएगा आपको. 2y minus 8 is equal to minus x minus 3. इसको भी आप सब कुछ एक तरफ लेके आइए. x plus 2y minus 5 is equal to 0 ही आ रहा है अभी भी. सेम आया आंसर? So it doesn't matter which point you take as x1 y1, which point you take as x2 y2. Okay, clear है क्या नहीं? Okay or not? Okay, sir. Okay, sir. Yes sir. फाइनल आंसर सेम आएगा. अब इसका इक्वेशन खुद से निकाल के देखिए. I want you to tell me the equation of this straight line. Do it fast. अगर समझ में आया तो 9x स्पीड बढ़ाना है. minus 7y minus 3 is equals to 0. कितना? माइनस 9x minus 7y minus 3 is equals to 0. -7 में दिख रहे हैं. कितना? 9x है क्या? 9x 9x minus 7y is equal to 3. 3. सबको सेम आंसर आया? देखिए, करके देखिए. Yes sir. Okay. Once you get the answer, how do you check whether your answer is right or wrong? Once you get the answer, how can you check whether your answer is right or wrong? Is there any सर process? ए या बी किसी का हाँ, एक्स वाई sir, का वैल्यू डाल coordinate देंगे. A and B Put कर सब्स्टिट्यूट देंगे. करके देखना है. A and B सब्स्टिट्यूट करके देखिए. अगर सेटिस्फाई हुआ दोनों, then your answer is right. सेटिस्फाई नहीं हुआ तो बीच में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ. Okay? Is it clear? आगे जा सकता हूं?
Can I go forward? Yes, Yes, sir. sir. अब questions दे रहा हूं, देखिए. First question. मैं पूरा question नहीं लिखूंगा. I'll just draw the diagram and ask you to find some equations. Okay. एक पॉइंट A है 2,1. एक पॉइंट B है 5,4. Okay. Next you have a point C which is 2, -3. Okay. 3 points है. Equation of line through C parallel to AB, perpendicular to AB. 2 equations निकालना है. Okay. इसका मतलब if you have the line AB, AB को जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक लाइन आएगा, राइट? अब C से एक ऐसा लाइन चाहिए जो AB का पैरेलल है, ये वाला लाइन के इक्वेशन चाहिए, एंड C से AB का एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था. So this is L1, this is L2. I want the equations of L1 and L2. Okay. Concept simple है क्या नहीं निकालने का? Yes, sir. So first step, slope of AB कितना है? What is the slope of AB? AB में AB are 2 points, right? So 2 points या तो slope निकाल सकते हैं y2 minus y1 by x2 minus x1, 3 by 3 which is equal to 1. Okay. Clear है क्या नहीं? So if a line is parallel to AB, slopes क्या होना चाहिए? Parallel lines का slopes क्या होगा? Equal. So slope of L1 should be same as slope of AB, which is equal to 1. So इस L1 के बारे में आपको क्या क्या पता है? इसका slope 1 होना चाहिए और इस पॉइंट से जाना पड़ेगा. So कौन सा फॉर्मूला यूज करिएगा? पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं. y minus of -3 is equal to 1 into x minus 2. हो गया आंसर. क्लियर है क्या नहीं? So अगर चाहिए तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. x minus y is equal to 5 is the answer. Okay. Next, if you want the perpendicular line, slope of L2 into slope of AB क्या होना चाहिए? L2 and AB are perpendicular to each other. So दोनों का slopes का product क्या होना चाहिए? -1. -1. This implies slope of L2 -1 होना चाहिए, right? So this line is also passing through the same point C. So point तो same है, just slope अलग है. So what is the equation of L2? Y plus 3 is equal to -1 times x minus 2. Okay. So y plus 3 is equal to minus x plus 2. So x plus y plus 1 is equal to 0. Okay. Easy?
नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. Yes, sir. So you're given 2 points A and B. Find equation of perpendicular bisector. Find the equation of perpendicular bisector. So क्या करना है? So perpendicular bisector का मतलब है मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट? सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप, मिड पॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकालना है? फॉर्मूला क्या है? एवरेज x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, राइट? मिड पॉइंट आ गया. एंड नेक्स्ट, व्हाट इज स्लोप ऑफ ए बी? ए बी का स्लोप कितना है? -5 -3 बाई 6 -2 -8 बाई 4, so -2 स्लोप. ओके, सो मिड पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया. सो मिड पॉइंट इज 4, -1. अगर ए बी का स्लोप -2 है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप कितना होगा? लेट अस कॉल दिस लाइन एज L1. 1/2. So slope of L1 into slope of AB should be -1. So slope of L1 is equal to 1/2 होना चाहिए, right? एक स्लोप अगर -2 है तो दूसरा स्लोप 1/2 होना चाहिए. ओके, समझ में आ रहे? So slope is 1/2, point is 4, -1. So equation of L1 is nothing but y plus 1 is equal to 1/2 into x minus 4. हो गया? Easy? Next question. एक ट्रायंगल है A B C 1, 1 2, -1 -3, 2. ओके, find equation of median AD, second altitude AE. altitude का मतलब पता है ना आपको? You know what a median and altitude are. So median AD का और altitude AE का equations चाहिए. So first क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करिएगा? मीडियन AD का मतलब है A से तो पास होना चाहिए, राइट? So is there any way to find the slope of AD? स्लोप ऑफ AD निकालना मुश्किल है. सर डी का मिड पॉइंट है सर बीसी का. तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं. एक पॉइंट पता है
सो लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए उसका स्लोप भी वैलिड इंफॉर्मेशन है, दूसरा पॉइंट भी वैलिड इंफॉर्मेशन है. सो डी इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ BC, राइट, which is equal to 2 minus 3 by 2 minus 1 plus 2 by 2. That is minus half comma plus half, right? Okay. सही है. So एक बार पॉइंट आ गया. So now what is the equation of AD? So y minus, देखिए कोई भी आप x1 y1 ले सकते हैं दोनों में, जो इजी है वो बेटर है ना, कौन सा लेने से थोड़ा सा लिखने में इजी होगा. ये लेता हूं. So y minus 1 is equal to slope into x minus 1, right? So इस slope का वैल्यू क्या है? 1 minus half by 1 plus half, सही. So basically y minus 1 is equal to, so ये जो 1/3 times x minus 1 हो रहा है LCM लेने के बाद. So this implies 3y minus 3 is equal to x minus 1. So x minus 3y plus 2 is equal to 0. Okay. Is this clear? How to find the equation of median? Altitude का equation कैसे निकालिएगा? Any idea? सर वो परपेंडिकुलर है सर, तो उसका स्लोप और निकल जाएगा ना सर स्लोप. सर BC का स्लोप है और AE का स्लोप निकालेंगे -1 होगा. गुड. सो AE का स्लोप निकाल सकता हूं मैं. सो फर्स्ट इसके लिए स्लोप ऑफ BC निकालेंगे. फर्स्ट स्लोप ऑफ BC इज 2 + 1 by -3 - 2 -3/5 आ रहे हैं. ओके. सो स्लोप ऑफ AE कितना होना चाहिए? डायरेक्टली बोल सकते हैं. BC का स्लोप -3/5 है, तो AE का स्लोप कितना होना चाहिए? 5/3. 5/3. ओके. सो इसका स्लोप आ गया, एक पॉइंट तो ऑलरेडी है. सो इसका इक्वेशन क्या है? y minus 1 is equal to 5/3 times x minus 1. Okay. Is it clear? So 3y minus 3 is equal to 5x minus 5. So 5x minus 3y is equal to 2 is the answer. Okay or not? So एक ट्रायंगल का मीडियंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ऑल्टीट्यूड्स, वो सारा आप निकाल सकते हैं once you know the process to find the equations of straight lines. Okay. So एक और क्वेश्चन करके हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे. सर सर एक बार थोड़ा सा पीछे जाइए सर, एक बार थोड़ा सा एक चीज नोट करना है. नोट कर लीजिए. हो गया सर. हो गया.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, so there are 2 points 1 4 and 8 1. एक और पॉइंट है 2 -2. This is point C. Find the equation of the line through C which divides AB in the ratio 2:1. Okay, क्वेश्चन समझ में आ रहे? मैं लिख रहा हूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू C dividing AB in ratio 2:1. ये क्वेश्चन कर सकते हैं? इसमें प्रोसेस क्या होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट क्या करना है, इसके बाद क्या करना है? 2 स्टेप क्वेश्चन है ये। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? फॉर्मूला से पॉइंट निकाल लेंगे। हाँ, सो 2:1 रेशियो वाला पॉइंट निकालेंगे, राइट? यस। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके P इज नथिंग बट 2 into 8 plus 1 into 1 by 3, 2 into 1 plus 1 into 4 by 3, right? So 17 by 3 comma 6 by 3, 2. So point आ गया। Okay, so what is the next step? Equation of line CP 2 point form यूज कर सकता ना। So y minus y1 जो पॉइंट इजी लग रहे हैं वो यूज करेंगे। So y minus y1 is equal to slope into x minus 2. स्लोप कितना होगा? 2 plus 2 y2 minus y1 by 17 by 3 minus 2. So y plus 2 is equal to 4 by 11 by 3. So 3 ऊपर चला जाएगा। So 11y plus 22 is equal to 12x minus 24. So 12x minus 11y is equal to 46. So once you get the answer, it is a nice habit to check whether the points are satisfying the equation or not. So शायद satisfy करना चाहिए, एक बार चेक भी कर सकते हैं आप लोग। Okay, आगे जा सकता हूं? Can I go forward? Yes, sir. Yes, sir. Next is, there are 2 more forms of straight lines. So slope intercept form, intercept form. These are special cases of point slope form and 2 point form. Okay, so मान लीजिए if a line is going like this, मान लीजिए line है,
The point where the line cuts x-axis is called x-intercept. ये क्या है? X-intercept. The point where the line meets y-axis is called y-intercept. समझ रहे? The point where the line meets x-axis is called x-intercept. The point where the line meets y-axis is called y-intercept. Okay. Clear है? So मान लीजिए x-intercept is, for example, -1. If I say that the x-intercept is -1, इसका मतलब क्या है? The line should pass through which point? -1, 0. हाँ, x-intercept देने का मतलब है लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल गया आपको, राइट? y-intercept देने का मतलब क्या है? That is also same as giving a point, right? Okay. So let us say that given slope and y-intercept, assume that you are given in the question the slope and y-intercept. y-intercept को c मान लीजिए. So point क्या हो जाएगा? 0, c होगा, right? Slope m दिया, y-intercept c मिल गया. Okay. So equation of the line क्या होगा? देखिए, y minus y1 is equal to m into x minus 0 हो जाएगा. So y minus c is equal to mx. So simply क्या है? y is equal to mx plus c. बहुत famous equation है. The equation of the line is what? Y is equal to mx plus c. Okay. So y is equal to mx plus c में m क्या है? लाइन का स्लोप है. c क्या है? What is c? बोलिए c क्या है? y-intercept. So अगर आपको y intercept and slope दिया तो आप ये डेरिवेशन भी करने का जरूरत नहीं है. You don't need to do this derivation. You can directly write the answer. मतलब शॉर्टकट जैसा है. ओके. अगर मान लीजिए स्लोप m एंड x इंटरसेप्ट इज गिवन. x इंटरसेप्ट को मान लीजिए d है. सो x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? पॉइंट इज d, 0, राइट? इस बार इस बार इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा? y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस d होगा. So simply y is equal to m times x minus d. This is the equation if slope and x intercept are given. Okay. समझ में आ रहे? For example, slope is equal to 2, y-intercept is equal to -3. Slope is equal to 2, x-intercept is equal to -5. Equation क्या होगा? What is the equation? वो y minus y1 is equal to m into x minus x1 भी करने का जरूरत नहीं है क्योंकि this is a special point, right? Special point है तो और easy हो जाएगा ना process. So y is equal to simply 2x minus 3 आंसर है. समझ में आ रहे? कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने? y is equal to mx plus c. 2x plus y intercept. What is the equation here? Y is equal to 2 times x plus 5. Clear? समझ में आया नहीं? Okay or not?
Yes, sir. Yes, sir. इजी लग रहा है? So this is a special case of point slope form, right? पॉइंट स्लोप फॉर्म में जो पॉइंट मिलता है वो कोई भी पॉइंट हो सकता है. सो पॉइंट इंटरसेप्ट वाला इंफॉर्मेशन में स्लोप मिलेगा और नॉट एनी पॉइंट, दोज विल बी आइदर एक्स इंटरसेप्ट्स और वाई इंटरसेप्ट्स. ओके, एक्स इंटरसेप्ट दिया तो प्रोसेस ये है, वाई इंटरसेप्ट दिया तो ये है. ओके, नेक्स्ट, अगर मान लीजिए बोथ द इंटरसेप्ट्स आर गिवन, मान लीजिए एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, दोनों इंटरसेप्ट्स मिल गया, इसका मतलब क्या है? दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ विच फॉर्म? दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म, राइट? एक्स इंटरसेप्ट का मतलब पॉइंट इज a, 0, वाई इंटरसेप्ट दिया इसका मतलब द पॉइंट इज 0, b. सो y minus y1 is equal to slope b minus 0 by 0 minus a. So minus b by a into x minus a हो जाएगा. So आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ay is equal to minus bx plus ab. So bx plus ay is equal to ab. दोनों तरफ ab से डिवाइड कर लीजिए. So क्या आ रहा है? x by a plus y by b is equal to 1. देखने में अच्छा लग रहा है इक्वेशन? If x intercept and y intercept are given, the equation of the line is simply x by x intercept plus y by y intercept is equal to 1. सिंप्लीफिकेशन समझ में आया? ये क्या है? इक्वेशन सिंपली x डिवाइडेड बाय कितना? x डिवाइडेड बाय कितना आएगा नीचे, x के नीचे? 3. प्लस y डिवाइडेड बाय कितना? y डिवाइडेड बाय -2. इज इक्वल टू 1. हो गया इक्वेशन. दिस इज द इक्वेशन. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देखिए आप ऐसा बोल सकते हैं, सर ये याद करने का जरूरत क्या है? अगर ये दिया तो मैं ओरिजिनल वाला फॉर्मूला तो है मेरे पास, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, 2 पॉइंट फॉर्म तो है. सो ये एक्स्ट्रा याद करने का जरूरत क्या है? सो आप बोलिए, ऐसा कुछ जरूरत है याद करने का? ये जो 3 डबल टिक किया हूँ, शुड दीज बी रिमेम्बर्ड और ऐसा डिराइव कर सकते हैं? सर फास्ट हो. हाँ, दिस इज टू इम्प्रूव योर स्पीड. ओके, आपका स्पीड बढ़ेगा. ठीक है, स्पेशल इंफॉर्मेशन, फास्ट आंसर. समझ में आ रहे? अगर नॉन स्पेशल, ठीक है, नॉन स्पेशल इंफॉर्मेशन दिया तो वो बेसिक फॉर्मूलाज तो है आपके पास, ठीक है, निकालने का. स्पेशल इंफॉर्मेशन दिया तो और जल्दी आ जाएगा आंसर. ओके, नेक्स्ट जाएंगे. अगर ये समझ में आया तो हम नेक्स्ट फॉर्म में जा सकते हैं. Yes, sir. नोट किया ये? Yes, sir. So next form is normal form of a line. This is the 5th form. इस बार देखिए, you have a line. Assume that you have a line L. इस लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए अभी तक
जो हम मेथड्स देखे हैं, एक पॉइंट, एक स्लोप और 2 पॉइंट्स, राइट? एंड उसी का स्पेशल केसेस. नाउ in normal form of a line, nothing is given about the slope or points on L. So the information given is something like this. ठीक है, ये लाइन ऐसा है कि अगर ऑरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो P है, और ये जो रे OP है एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहे हैं in the counterclockwise direction. So if this P and alpha are given, P and alpha are given, then we say that the information is given in which form? Normal form of the line. Okay. अगर ये दोनों informations दिया तो can you find the equation of the line? Is it possible? Yes or no? दो informations तो आ गया ना आपको, right? So theoretically it is possible to find the equation of this line. The question is how? How do you find the equation of this line? सर जहाँ परपेंडिकुलर मीट कर रहे हैं वहाँ का कोऑर्डिनेट्स निकाल के थोड़ा. ओके, वो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे क्या? कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? ये बहुत डिफिकल्ट नहीं, आप फिजिक्स में किए हैं ये. दिस इज ए रे हुज लेंथ इज p एंड दिस मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विद एक्स एक्सिस. सो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? कोई बोल सकते हैं? P cos alpha, P P cos sin alpha, alpha. P sin alpha. आप आपका कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. यू कैन रिलेट योर फिजिक्स एंड मैथ्स कॉन्सेप्ट्स. सो p cos alpha का p sin alpha. ओके, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ गया, इसके बाद और क्या सर- चाहिए? सर अब उस लाइन का स्लोप निकालेंगे P का. स्लोप कैसे निकालिएगा? सर मेरे पास 2 पॉइंट्स है तो एक ही पॉइंट है ना, 2 पॉइंट्स कहाँ है? Sir, perpendicular slope minus. परपेंडिकुलर एक ही पॉइंट है ना अरे मेरे पास. तो ओरिजिन है ना, एक ओरिजिन है ना 0. ओरिजिन है. ओके, इस लाइन का स्लोप निकालिएगा क्या? यस सर. ओके ओके. Yes, sir. अगर इस लाइन L मान लिया तो स्लोप ऑफ Sir. L इज, एक सेकंड, सर और एक पॉइंट है सर. हाँ, सर और एक पॉइंट है तो वाई इंटरसेप्ट तो है. y इंटरसेप्ट कितना है? ओ सर वैल्यू तो अननोन है सर. हाँ, को पता नहीं ना. ओके. स्लोप ऑफ लाइन इज y2 माइनस, ये 0,0 है ना, सो y2 Yes, माइनस sir. y1 by x2 माइनस x1 tan अल्फा आ रहे हैं. ओके, अगर इसको L1 मानेंगे, ये L है ना, ओरिजिनल वाला L है. सो स्लोप ऑफ L इंटू स्लोप ऑफ L1 कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए, राइट? यस सर. सो स्लोप ऑफ लाइन Yes, क्या sir. होगा? -1 by tan अल्फा. ओके, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा. ओके, गुड. सो एक पॉइंट मिल गया, एक स्लोप मिल गया, राइट? सो निकालेंगे इक्वेशन. सो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा इंटू x माइनस p cos अल्फा. ओके, सो y माइनस p sin अल्फा इज इक्वल टू कॉट अल्फा को माइनस cos अल्फा बाय sin अल्फा लिखता हूं. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो y sin अल्फा माइनस p sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस x cos अल्फा प्लस p cos स्क्वायर अल्फा आ रहे हैं. ओके, सो x एंड y से एक जगह लेके आता हूं. x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू, इसको मैं उस तरफ भेज देता हूं. भेज दिया तो p कॉमन आया तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा आ रहा है. देखिए कितना होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा? 1. So this implies x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. हो गया डेरिवेशन. बार बार ये डेरिवेशन करना चाहता है कि या याद करना चाहते हैं? सर फॉर्मूला तो है. हाँ, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. ठीक है,
So if P and alpha are given, the equation of the line is simply x cos alpha plus y sin alpha is equal to P. Okay, ठीक है, आप डेरिवेशन अच्छा सा बोल दिया, और भी इजी है एक्चुअली, इंटरसेप्ट निकालना भी इजी है। देखिए इसका कॉस कंपोनेंट p है, सो ये p बाई कॉस अल्फा हो जाएगा, ये वाला इंटरसेप्ट, ये वाला Yes, p बाई sir. साइन अल्फा हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. ऐसा भी आप सोच सकते हैं, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, सो दिस विल बी p बाई कॉस अल्फा, दिस विल बी p बाई साइन अल्फा। अगर ये दोनों आए तो विच फॉर्म कैन बी यूज्ड? अगर दोनों इंटरसेप्ट्स का लेंथ आ गया आपको, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? x बाई X by A बाई plus कॉस अल्फा प्लस y बाई p बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। ये तो देखिए एक ही स्टेप में आंसर आ गया, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। सही है? So what is the equation of the line in normal form? The answer is x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. Okay, बट इसमें ध्यान से देखिए, व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन, angle made by the perpendicular from origin with the positive direction of x-axis. Okay, clear है? नोट किया? रुकिए सर, नोट कर रहे हैं। नोट कर लीजिए। नोट किया बेटा सब लोग? यस सर, नोटेड। Yes. Yes, sir, noted. इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, you just have to find the equation of the line. Okay, ठीक है, I have given you four lines. I want you to find the equations of these lines. Okay, so देखिए सिंपल है। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है, मोस्टली द कंफ्यूजन विल बी इन व्हाट इज अल्फा।
जो भी एंगल मैं दे रहा हूं वो अल्फा नहीं है. व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विथ व्हाट? विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. सही है. इन स्टैंडर्ड कन्वेंशन. स्टैंडर्ड कन्वेंशन का मतलब आप काउंटर क्लॉकवाइज मेजर किया तो पॉजिटिव रिपोर्ट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज मेजर किया तो नेगेटिव रिपोर्ट कर सकते हैं. ओके. सो इसका P इज इक्वल टू 3, इसका P इज इक्वल टू 3, इसमें P इज इक्वल टू 4, इसमें P इज इक्वल टू 2. देयर इज नो कंफ्यूजन. यह अल्फा कितना है, अल्फा कितना है, अल्फा कितना है, अल्फा कितना है बोल सकते हैं? व्हाट इज अल्फा? फर्स्ट का अल्फा कितना है? फर्स्ट क्वेश्चन में अल्फा 30 degrees. सर 30 में डिग्री. कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से है. व्हाट इज अल्फा हियर? 150 degrees. अल्फा इज 150 डिग्री. समझ में आ रहे? दिस इज नॉट अल्फा. अल्फा शुड ऑलवेज बी मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. इसका अल्फा कितना है? 300 degrees. अगर काउंटर क्लॉकवाइज में मेजर किया तो 300 डिग्रीज हो जाएगा. राइट? क्योंकि 270 प्लस 30 300 डिग्रीज. और आप -60 डिग्रीज भी लिख सकते हैं. बोथ आर राइट आंसर्स. क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं ना आप. राइट? सो आइदर 300 डिग्रीज यूज कर सकते हैं और -60 डिग्रीज भी यूज कर सकते हैं. सेम आंसर आएगा. व्हाट इज अल्फा हियर? 210 degree. एक पॉजिटिव आंसर बोलिए, नेगेटिव आंसर भी बोलिए. 210 डिग्रीज सर और 210 और -150. minus 150 degrees is also right answer. Okay. So what is the equation of this line? X cos 30 degrees plus y sin 30 degrees is equal to 3. इसका इस लाइन की इक्वेशन है x cos 150 degrees plus y sin 150 degrees is equal to 3. Okay. इसका इक्वेशन x cos 300 degrees plus y sin 300 degrees is equal to 4. x cos, ठीक है, 300 के प्लेस में -60 लिखा तो भी सेम वैल्यूज आएगा. ओके. x cos -150 degrees plus y sin -150 degrees is equal to 2. Okay. आंसर समझ में आ रहे? Yes, sir. So you're understanding how to find equations of straight lines in normal form, right? सर हाँ सर cos 30 का वैल्यू लिखना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ. फाइनल आंसर में लिखना है ओके सर. x into √3/2 plus y into 1/2 is equal to 3. अगर नॉर्मल फॉर्म में छोड़ने के लिए बोला तो ऐसा ही छोड़ना पड़ेगा. ओके. वो भी क्वेश्चंस करेंगे हम. एक ऐसा क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म. वो क्वेश्चन हम अगला क्लास में देखेंगे. ओके. सो आज हम क्या देखे हैं? वी हैव सीन 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस. राइट? क्या क्या है? सर पॉइंट्स ऑफ फॉर्म देखे, 2 पॉइंट फॉर्म देखे, फिर से इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म देखे. इंटरसेप्ट फॉर्म, ओनली हाँ सर. फॉर्म, एंड लास्ट हाँ नॉर्मल लाइन फॉर्म. स्ट्रेट लाइन. ओके. सर सर क्वेश्चन है कॉस्ट, अरे कॉस्ट 300 जो है ना सर, हाँ तो वो तो ऐसे छोड़ना है ना सर? कैसे? सर उसको जो इक्वेशन लिखा है आपने, x cos 300 प्लस y बेटा, sin 300, अगर उसको ऐसे ही छोड़ना है ना? नहीं, वही बोल रहा हूँ. इफ आई आस्क यू टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, आप इसका वैल्यूज पुट करके फाइनल इक्वेशन लिखना पड़ेगा. कभी कभी क्या होता है, x√3 प्लस y इज इक्वल टू 6 आ रहा है ना, ये वाला इक्वेशन.
ये Yes, जो sir. है दिस इज कॉल्ड Yes, sir. नॉर्मल फॉर्म. ओके, नॉर्मल फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा. ओके, इसके ऊपर हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, कैसे आप निकालते हैं इक्वेशन. Yes, sir. So we'll stop here. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. We'll meet in the next class. ये बोला था ना मैंने, अगला जो मंडे का टेस्ट जो है वो स्ट्रेट लाइंस और लिमिट्स और डिफरेंशिएशन का बहुत कम क्वेश्चंस होगा, बट कुछ क्वेश्चंस तो आएगा डिफरेंशिएशन का. ओके, Sir, differential का टेस्ट है ना सर? डिफरेंशिएशन में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि वो टॉपिक इजी है ना बहुत, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल्स का ऑब्जेक्टिव क्या बनाएंगे. ओके सर. बाद में स्ट्रेट लाइंस का मैं सब्जेक्टिव टेस्ट लेता हूँ, ठीक है, डिफरेंशिएशन का. सो मंडे का टेस्ट में आपको स्ट्रेट लाइंस जहां तक हुआ है लाइंस की इक्वेशन निकालना, ये भी क्वेश्चंस आएगा, और लिमिट्स का भी कुछ क्वेश्चंस आएगा, और डिफरेंशिएशन का अगर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो वो भी आएगा. ओके, बहुत इजी क्वेश्चंस आएगा. इस बार स्कोर करना है, स्कोरिंग वाला पेपर होगा इस बार. ओके 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 सर. ओके बेटा, हाँ, गुड बाय. थैंक यू सर.